Okay, I'm live. Hi everyone, welcome to my live. This is all about full moon and full moon energy. Let me put some filter so that I can bear myself. Hi. एक ढंग का फिल्टर नहीं मिल रहा मुझको. I think. Hi everyone. Hi Meghna. Hello, hello, hello. Okay, let it be. Hi Dhananjay. Happy full moon everyone. ओके सो नंबर वन थिंग कल एक मेडिटेशन सेशन होने वाला है सेम 8 बजे शाम को और इवन दो इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग टू अटेंड दिस सेशन लिंक मेरे बायो में एक लिंक है जिसमें मैंने आपकी ईमेल आईडीज़ और आपका नाम मांगा है सो दैट आई कैन सेंड यू अ जर्नल प्रॉम्प्ट which is related to full moon and also few rituals which you should practice around full moon and yeah, I'll be sending you that. तो एटलीस्ट रजिस्टर कर लो. ओके सो विल स्टार्ट. तो मुझे क्या बताना है एग्जैक्टली आपको फुल मून के बारे में बेसिकली सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है बट बेसिकली फुल मून और मे बी न्यू मून these are basically opportunities that you can look forward to. तो अब जो फुल मून आ रहा है, एम आई ऑडिबल? सो अब जो फुल मून आ रहा है फुल मून के अराउंड हमारी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा हाई, बहुत ही ज़्यादा यू नो बूस्ट में होती हैं. एंड आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड विद द मैसेजेस. ओह माय गॉड. हाय सुमित, हाय अखिल, हाय सागर, हाय अरुण. ओके प्लीज. Yeah, so what I was saying number one thing, please register for the session, even though if you're not planning to join, because you'll get few journal prompts and a ritual sheet where you'll be able to, you know, सी कि फुल मून के अराउंड क्या क्या करना चाहिए. तो सबसे पहली चीज़ आई वाज सेइंग दैट दिस न्यू मून एंड फुल मून आर बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ कि आपको कुछ शुरू करना है, आपका कोई पेंडिंग टास्क आपको ख़त्म करना है, और मे बी यू कैन सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज समथिंग फ्रॉम योर सेल्फ फ्रॉम विद इन. ओके, तो सबसे पहली चीज़ मुझे आपको बतानी है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू take care of yourself around this period. Even though it's new moon or full moon, you have to take extreme good care of yourself, क्योंकि हमारी energies बहुत fluctuate होती रहती है, हमारे mood swings, हमारे emotions बहुत fluctuate होते रहते हैं. So it's important that you either do any kind of physical exercise. You can practice yoga, physical exercise. You can do some of your shadow work. So shadow work is basically, अभी बहुत डीप में मैं नहीं बता सकती, but in short मुझे बताना है कि something that we are afraid of doing or something that we are afraid of thinking. कोई चीज़ होती ना हमारी खुद की जो हम खुद से नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, हम वो इग्नोर करते बहुत लंबे टाइम तक. सो दैट इज नोन एज योर शैडो वर्क, विच इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक. बट द फर्स्ट थिंग आई वाज सेइंग इज टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो योर मेंटल हेल्थ और योर इमोशनल हेल्थ. बहुत बारी बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेलम फील करते इस एनर्जी के अराउंड. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू टेक गुड रेस्ट, you take good amount of rest and take things slow and just enjoy this period, because it's important कि कि हर वक्त वो chasing energy ना रहे कि करना है करना है करना है. इट्स important to give yourself some time so that ये जो थोड़ा slow down वाला period होता है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा energize करता है, ताकि जो आपका upcoming phase हो वो और ज़्यादा अच्छा हो, और ज़्यादा with a bang हो.
Okay, so first was taking care of yourself. Number two, just try to inculcate one activity which will help you to boost your mood. Jैसे I was not feeling good for like past 2 days, so I was trying कि मैं मैं कुछ इतना ना करूँ ताकि I feel burnout and then I will be like, let's take a break for a week, because that will be too much. So what I did was I did my gardening thing, I did my journaling. So these are the thing which made me feel grounded, made me feel like, okay, yeah, things can go slow and normal and still you can be very happy about it. Hello everyone, welcome, welcome, welcome. Okay, so one activity so that you can boost your mood. It could be anything. It could be like just watching few beautiful series and doing whatever you want to do. Okay, now see, full moon के around ना एक completion वाली energy होती है. So if you're feeling that something which is not working out for you, maybe it could be a person or a thing or maybe your own habit, your own behavior, कोई एक ऐसी चीज जो आपको ऐसा लग रहा है आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही है, या आप उसको कर तो रहे बट यू डोंट वांट टू कंटिन्यू दैट इन फ्यूचर बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, इट्स नॉट गुड फॉर योर हायर सेल्फ. This is the right time that you remove those behaviors, those patterns, or that human beings in your life which are not serving your best. Yeah, it's important. Hello Vedehi. So make sure that if this is an opportunity, you take advantage of this opportunity. In the sense, फिगर आउट करो कि ऐसा क्या चल रहा है लाइफ में जो अभी फिलहाल जो आपको आपके हिसाब से ठीक नहीं लग रहा है. कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका खुद का बिहेवियर हो सकता है, सामने वाला कोई इंसान हो सकता है कि वो आपकी एनर्जी कम्प्लीटली एग्जॉस्ट कर रहा है. एनीथिंग, दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी कि आप ये सारी चीज़ों से अपने आप को डिस्टेंस करें और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें. नॉट जस्ट चेंज, चेंज इज़ very temporary. Try to transform yourself, make a bigger and better change. Okay, एक चीज़ आपको जब छोड़नी है, योर हैबिट, योर बिहेवियर, तो आपको एक चीज़ अडॉप्ट भी करनी है ताकि यू कीप लर्निंग एंड यू कीप ग्रोइंग. तो जैसे ही फुल मून खत्म हो जाएगा, आपको थोड़ा रेस्ट पीरियड करना, तो टेक some time for rest. And जैसे ही न्यू मून आता है, then plan something for yourself, maybe like do at least one activity, inculcate one habit, something like that, so that you feel कि you're continuously learning something, you're continuously growing yourself, and this is a very 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 good opportunity for you क्योंकि your energies around new moon and full moon are very 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 beautiful. You can really manifest whatever you want to manifest. Hi Meg. And the last point is about manifestation. So फुर्सत में बात करते हैं. So what is basically manifestation? जैसे जैसे आप खुद को टाइम देना शुरू करोगे, if you start taking how to, okay, I'll come to this. Let's talk about manifestation first. So जैसे ही आप you'll try eradicating wrong people, wrong behaviors in your life, ये सारा filtration अगर आप शुरू कर दोगे ना, तो automatically you'll be having that clarity and that एक क्लियर विजन सेट हो जाएगा कि मुझे यही चाहिए. एंड वंस योर इंटेंशन इज सेट, आई थिंक वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक और एकदम अच्छा स्टेप है कि आपने एक बार इंटेंशन सेट कर दिया कि मुझे ये तो चाहिए ही, एंड यू आर जस्ट टेकिंग एनर्जीज out from your life which is not required, which is not serving you best. Automatically you will be manifesting whatever you wish to manifest, whatever you really or genuinely want in your life, and it is good for your higher self. Okay, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन कि कि बिहेवियर रिमूव कैसे करें, या फिर हाउ टू रिमूव समथिंग विच इज़ बीन देयर विथ यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो ऑल यू कैन डू इज़, सो ओके, मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ. नंबर वन, जैसे कि आई हैव दिस हैबिट ऑफ जस्ट हेल्पिंग एवरी वन, एंड मुझसे ना नहीं बोला जाता. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से नो. So all I can do is in this situation is number one to address कि मेरा ये issue है.
और मैं हर किसी को हेल्प नहीं कर सकती हूँ, मैं हर किसी को उनके हीलिंग जर्नी में प्रेजेंट या पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हूँ. सो नंबर वन थिंग इज़ आई एम एड्रेसिंग कि मेरा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है. तो प्लीज़ पहले एड्रेस करो कि इशू क्या है, कौन सी चीज़ है जो आपको एक्चुअल में बॉदर कर रही है. इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो मेरा जर्नल प्रॉम्प्ट है उसको आप एक बार देख लोगे, आप एक बार प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, दैट विल रियली वर्क आउट फॉर यू. सो नंबर वन थिंग वाज कि एड्रेस कर लो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है जो आपको बॉदर कर रहा है. वो एक बिहेवियर पता करो, वो एक पर्सन पता करो जो आपके लिए नहीं वर्कआउट कर रहा है. नंबर टू, एक बार आपने एड्रेस कर लिया है, एक्सेप्ट करो कि ये इशू है आप में, या एक्सेप्ट करो कि यू नो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर मी. बिकॉज इतने से अगर आप ये दो भी कर लो, एड्रेस कर लो और एक्सेप्ट कर लो, दिस विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. आप एटलीस्ट अवेयर रहोगे जब आप नेक्स्ट टाइम वो गलतियाँ करोगे या नेक्स्ट टाइम वो बिहेवियर्स रिपीट करोगे. दिस टू स्टेप्स इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. नंबर वन इज एड्रेसिंग कि क्या वर्कआउट नहीं कर रहा है, और एक्सेप्ट करना कि भाई ये चीज़ मेरे लिए नहीं वर्कआउट कर रही है. उसके बाद टेक स्मॉल स्टेप्स, स्मॉलेस्ट स्टेप्स. जितना छोटा चेंज ला सको उस चीज़ को लेके उतना छोटा चेंज ट्राई करो. This is not something which will happen like in a day or two. Obviously it will take time, but it's important कि आपने एड्रेस तो किया. बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में कॉन्शियस ही नहीं होती कि उनको क्या ट्रबल है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है. So it's a good question. Please try to acknowledge it, try to address it and then accept कि ये मेरी गलतियाँ हैं. और फिर लोगों से बातें करो. आई मीन लुक कि इसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं. और जैसे मैंने बोला है, जर्नल प्रॉम्प्ट को एक बार प्रैक्टिस करो तो यू विल एबल टू हैव क्लैरिटी ऑन दिस. एनी मोर क्वेश्चंस? मून साइकिल्स के बारे में और हाँ, साइकिल्स के बारे में मैंने मेरे हाईलाइट में है फुल मून का, न्यू मून का, तो प्लीज़ वो देख लेना. सो मच आई एम मेकिंग द स्मॉल स्टेप्स पार्ट. Sweetheart, you have to tell me that what is that one thing. I won't be able to help you like this. You can message me after the live. We can talk about this. I think we are done, right? मैं एक बार समराइज कर दूंगी मैंने ओवरऑल क्या बोला. सबसे पहले मैंने बोला कि प्लीज़ रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि उसमें आपको जर्नल प्रॉम्प्ट्स मिलने वाले हैं. इट विल रियली हेल्प यू टू नो कि यू नो क्या करना है ये फुल मून और न्यू मून एनर्जीज का. एंड आई हैव लॉस्ट द पेज. नंबर टू, आई हैव सेड कि प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज एनर्जी फ्लक्चुएट होती रहेगी और आप पागल होते रहोगे और ये ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस आपको समझ में नहीं आएगा. तो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड देन remove one habit, remove one person which is not good for you. Inculcate one habit, inculcate something that is really working out for you. एक habit लो अभी फ़िलहाल इस days के around, that will really boost your mood and help you being grounded. And the last was manifest. You will automatically manifest whatever you want once you start saying tata bye bye to the wrong things. Okay. What is Klim mantra? How it will help us? Okay, so Klim कृष्ण भगवान का मंत्र है. पूरा मंत्र है ओम क्लिम कृष्णाय नमः. सो इट्स बेसिकली एक अट्रैक्शन मंत्र है. तो अगर मुझे मेरी लाइफ में लव अट्रैक्ट करना है, और मे बी हेल्थ, वेल्थ, एनीथिंग दैट यू वांट टू अट्रैक्ट इज व्हाट इज क्लिम मंत्र. एंड हाउ इट विल हेल्प अस? यू कैन पुट अ इंटेंशन कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, और फिर आप क्लेम चैंट करते रह सकते हो. ओके, आई थिंक आई एम डन. कोई और क्वेश्चन है? और क्लेम चैंट करने का बेस्ट टाइम है अगर आप शाम को करो. वैसे आप कभी भी कर सकते हो, बट इवनिंग इज द बेस्ट टाइम. Any more questions? So
कल जो मेडिटेशन सेशन है आधे घंटे का फ्रॉम इवनिंग 8 to 8:30, उसमें मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगी कि हाउ यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट। एंड उससे पहले हम थोड़ा कुछ 5-10 मिनट का एक ग्राउंडिंग एक्टिविटी करेंगे, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट इन अ राइट स्टेट ऑफ माइंड तो मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। आपको खुद को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और यू शुड बी इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। तो वो सब खिचड़ी दिमाग में होता है, उससे आप नहीं मैनिफेस्ट कर पाओगे। कीप योर एनर्जीज हाई एंड पॉजिटिव। And thank you so much for joining in. I'll say a good tata bye bye to you all. Thank you, Meghna. I'll see you tomorrow. I mean, whoever is attending the session. Bye. Happy full moon.